all, I would like to thank my parents and Mr. Dinesh sir, Mr. Kushwaha sir and Mr. Tyagi sir. फिर जितना भी आपको रीडिंग से पढ़ाया जाएगा will be self sufficient to crack JEE with good rank and clear your 12th with a good score. And I've done my schooling from St. Joseph's Convent Girls Senior Secondary School. 10th के बाद जब 11th में मैथ साइंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स सब यही चाहते हैं कि हम IIT JEE क्रैक करें, और सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि IIT बहुत टफ है। लेकिन जब मैं भी 11th में आई तो मुझे भी यही लग रहा था, मैं खुद बहुत ज़्यादा नर्वस थी, पर मेरे टीचर्स वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने जिस तरह वो इनकरेज करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, IIT ऐसा भी कोई टफ नहीं है और हम भी निकाल सकते हैं। But I'm glad that you all are great teachers like Mishra sir and Kushwaha sir at Radiance, and it's great opportunity for you all to know more about KVPY and become one fellow. And the basics you learn at Radiance, they are really helpful. Trust me, when I was learning those things, I did not know that these things will be useful to me till date. Recently, I gave interview for Amazon. It's one of the biggest e-commerce companies in this world, and the questions which I was asked were somehow linked to the things I learned, the basics of relativities, the basics of graphs taught by Mishra sir. Everything was related to the questions I was asked during Amazon interview. I'm glad that you do not need to go anywhere to big cities like Mumbai or Delhi or Kota or any such fancy places, I call it. When you start entering into 11th and 12th class, you have very great faculty right here at Radiance in Jabalpur, and whatever things you do, whatever things you learn in classroom, whatever things are given in packages, whatever things are being told by faculties, please take them seriously. They have huge experience with them, and trust me, at that stage you will feel that okay, this may not be useful, but it will be very useful till the end. Everything comes down to problem solving. It does not matter which subject it is, it does not matter which examination it is. At the end of the day, you will be solving some problem, and those problems can be solved by learning basics. There are very few principles which you need to learn. There are very few formulas which you need to understand. There are very few graphs which you need to understand, and everything can be constructed from this. And I guess no one can teach you these things better than the faculties here at Radiance. मैं जब रेडियंस में 11th में आया तो यहाँ मैं काफ़ी पहले कोचिंग सर्च कर चुका था। उसके बाद जब मैं एंटर किया तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। यहाँ टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे और वो हर तरह से हेल्प करते थे। और फिर मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में भी पूरे समय यहीं पढ़ता था, यहीं बैठा रहता था, और वो काफ़ी हेल्प किया मुझे। और मेरी स्पेशली मैथ्स और केमिस्ट्री में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था जब मैंने ज्वाइन किया रेडियंस। सबसे पहले थैंक करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मेरे को 2 साल खूब सपोर्ट किया। फिर टीचर्स को भी, दिनेश सर, त्यागी सर, कुशवाहा सर, जिनने मुझे काफ़ी हद तक इतना काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। 2 साल पहले मैं भी वहाँ कहीं बैठा रहता था और अपने सीनियर्स को देखता था। मैं 10th में जब था तो मेरा कुछ खास एम नहीं था, बस मैं 10th किया और बस पढ़ लिया, नॉलेज के लिए पढ़ लिया। मैं अपनी कॉलोनी में, मेरे राहुल भी आते हैं, मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली, उन्होंने IIT क्रैक की। तब मैंने एम सेट किया कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पास नॉलेज ज़्यादा नहीं था, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, ज़्यादा कुछ पढ़ता नहीं था। मैं 10th में आया रेडियंस में, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मैं कुछ खास रैंक नहीं आया। मेरे साथ वाले दोस्तों का भी उतना नहीं आया। मैक्सिममली डिप्रेस हो गए और सोचने लगे नहीं यार रेडियंस नहीं हो पाएगा, पढ़ना बहुत मुश्किल है, सब सर के ऊपर से जाता है, और छोड़ दिया। मैं गया सर के पास, मैंने सर के पास गया, मेरे को बोला कि बनता नहीं है कुछ। पहले तो डर लगता था कि यार 2+2 4 टाइप की चीज़ पूछूंगा सर डांट देंगे, बट फिर लगा कि क्यों नहीं पूछूं, अभी तक नहीं बना तो ऐसा थोड़ी कि आगे भी नहीं बनेगा। मैंने पूरी हिम्मत की और सर के पास गया और अपने सारे बेसिक्स क्लियर करे।
सर ने भी अच्छे से क्लियर करे मेरे सारे बेसिक्स, और फिर मैं प्राउड से कहता हूँ कि आज यहाँ मैं अपनी सबसे ब्यूटीफुल इवनिंग एंजॉय कर रहा हूँ आप सबके सामने। अवॉइड फेसबुक, आई एम सो क्लियर, अवॉइड फेसबुक। दूसरों के स्टडीज आर पूछना और टेक्निक्स पूछना इज उतना काम नहीं आता, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, सबकी अपनी टेक्निक होती है। कोई शाम को पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन को पढ़ता है, तो गलत नहीं होता पढ़ना, बस सबका अलग होता है। मैं रेडियंस में 2 साल पहले आया था, मेरा कुछ ऐसा पर्टिकुलर एम नहीं था। जब मैंने रेडियंस में पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने अपनी पोटेंशियल जानना चालू किया, तब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं 2 साल पहले आते हैं, करते हैं, उन लोग को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं आईटी जाने का। बट मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि ये सब बहुत मुश्किल नहीं होता है, अपने अंदर बस एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है और बस हार्ड वर्क करना पड़ता है। सर को भी, तीनों सर को, दिनेश सर, कुशवा सर, त्यागी सर, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। इधर स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा मिलता है, प्लस डाउट क्लियरिंग इज ऑसम। और दिनेश सर का मोटिवेशन, आईआईटी में सिर्फ गीक्स नहीं जाते हैं, गीक्स मीन्स जो बहुत पढ़ाकू होते हैं, मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं, पागल से दिखते हैं, ऐसे लोग नहीं आते हैं आईआईटी। आईआईटी फॉर एवरीवन। रेडियंस आ रहे हैं, आप 2 साल आराम से पढ़ रहे हैं, तो आपको बोर्ड का कोई चिंता करने की जरूरत ही है ही नहीं। मतलब सर लोग क्लास में इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतनी चीजें क्लियर कर देते हैं कि बोर्ड का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बच्चे 10th में अच्छा करते हैं, जरूरी नहीं है वो उनका फ्यूचर ब्राइटेस्ट हो। आपका जो ये 2 साल है, ये मोर इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आई हैव सीन पीपल विद CGPA 6, 7, 8, they have been better than CGPA 10 स्टूडेंट्स। आज आप उधर है, कल आप इधर होंगे। रेडियंस के त्यागी सर, मिश्रा सर, कुशवाहा सर, तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया मुझे, और मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया। और इवन बचपन से मुझे मतलब केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट कुशवाहा सर ने जिस तरह से पढ़ाया था मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। 2 साल पहले 11th में था, और हर बच्चे की तरह मुझे भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़े। एक हाथ डिसीजन होता है कि आपको जबलपुर में रह के पढ़ना है कि बाहर जाके पढ़ना है। मेरा जैसे आज MIT में सिलेक्शन हुआ, मोस्ट ऑफ दी जो रीज़न है वो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स रहे हैं, जिसकी कंप्यूटर्स रहा है, और ये सब मैं परस्यू तभी कर पाया जब मैं जबलपुर में रहा। यदि मैं बाहर जाता, जैसे कोटा जाता, तो वहाँ मतलब आप और पूरे डेडिकेटेड हो जाते हो कि आप सिर्फ जेईई के लिए पढ़ो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार यदि पढ़ते भी हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप पढ़ते हो तो उसके साथ ब्रेक्स भी जरूरत रहता है। आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो भी आपको पसंद है, वो जरूर आपको करना चाहिए। और इसी जबलपुर में रह के मतलब मैं सारे इंटरेस्ट, जो भी मेरे इंटरेस्ट थे, कंप्यूटर्स था, म्यूजिक था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, ये सभी मैं कर पाया। I have heard many students saying that the JEE exam is very tough to crack. But according to me, this journey is not so tough. I would not recommend total hard work, but instead I would like to say one must do smart work. बच्चा 10th से 11th में आता है तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उसको एकदम से बर्डन लगने लगता है, बहुत कोर्स ज़्यादा लगने लगता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि 10th तक एक हैबिट होती है बच्चे की कि वो आखिरी दिन पढ़ेगा, या मतलब 2 दिन बच्चे एग्ज़ाम के लिए तो तब पढ़ना चालू करेगा। जेईई में ऐसा नहीं होता। जेईई रिक्वायर्स कि आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहो, आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, हर रोज़ कुछ ना कुछ तो पढ़ो, मतलब एटलीस्ट 5 घंटे ही पढ़ो, या किसी दिन कम हो जाता है तो फिर भी, लेकिन रोज़ पढ़ना मतलब अच्छा ही रहता है जेईई के लिए। और वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन पहले पढ़ के अगर निकाला जा सकता है। मतलब मैं खुद ही एक एवरेज स्टूडेंट था 10th तक। मतलब मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। जैसे NTSC था, या 11th में KVPY दिया तो उसमें भी कोई बहुत अच्छा कुछ किया नहीं, KVPY भी नहीं निकाल पाया। पर 10th मतलब जैसे मैं 11th में आया था तो जो टेस्ट होता है रेडियंस का इंटरेस्ट, उसमें भी कुछ खास किया नहीं था मैंने, और रैंक भी थोड़ी पीछे ही आई थी मेरी।
और 11th में जो शुरुआत में वीकली टेस्ट होते थे उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस अच्छी रही नहीं, कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती थी मेरे में। मतलब एक में कभी फर्स्ट आ रहा हूँ तो एक में 10th, एक में 15, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। शुरुआत में कुछ समझ में भी नहीं आता था, मतलब मैथ्स फिजिक्स ऊपर से जाता था, तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती थी शुरुआत में। फिर धीरे धीरे करके वो सब इम्प्रूव होने लगता है, प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे करके बाद में बनने लगते हैं। और फिर मतलब जैसे 11th से 12th में आया तो काफ़ी रैंक इंक्रीज हुई, प्लस कंसिस्टेंसी आने लगी थी। जैसे 12th में टॉप 5 से नीचे नहीं आता था, या मतलब मेनली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही रहता था। अभी जो है मतलब फेसबुक पे अकाउंट बनाया मैंने, ये सब 2 साल तो ये सब नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप। बहुत कठिन नहीं होता पेपर, आप लोग हर कोई कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं भी कोई मतलब बहुत मेरा आईक्यू भी ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब बहुत इंटेलिजेंट नहीं था मैं 10th तक। फिर मतलब वो हार्ड वर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कठिन तो कुछ भी नहीं होता है, जेई निकालना तो काफ़ी मतलब आसान है। अगर आप 2 साल आपको अपने आप को फोकस रखेंगे, मेरे को जेई निकालना है और ऐसा वैसा। मित्रों, आपको अपनी लाइफ में एक शख्स ऐसा जरूर मिलेगा जो आपसे बहुत पहले से आईआईटी की प्रिपरेशन चालू कर दी होगी। मेरे साथ भी थे, मेरे स्कूल में 9-10 से कर रहे थे, 6-7 से कर रहे थे, बट एट द एंड आवर नॉलेज वाज द सेम एंड इट वाज जस्ट आवर ब्रेन्स वर्सेस द क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड। सो नेवर थिंक लाइक दैट कि क्वेश्चन मतलब कंपटीशन उनका है एंड वी आर नॉट इवन पार्ट ऑफ द रेस। वी आर पार्ट ऑफ द रेस एंड वी कैन विन द रेस। सो द बेस्ट स्टडी मटेरियल in this whole world is your class notes, as it is prepared by you under the guidance of these 3 excellent mentors. So better focus of them. रेडियंस की जो फैकल्टीज हैं, त्यागी सर, कुशवाहा सर और मिश्रा सर, आई थिंक दे आर प्रोबेबली द बेस्ट। कई ऐसे पॉइंट्स आए हमारे स्टडी में कि आप क्लियरली बोल सकते हैं कि इससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। और जो सेकेंड थॉट मुझे काफ़ी इंस्पायर की है वो है एवरीबडी कैन रन, but not everyone is willing to run every day. Don't tell me sky is the limit, as I have seen footsteps on moon too. First of all, I would like to thank my parents, my sister, Radiance and my 3 mentors. स्कूल लाइफ में मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, ऐसा कुछ खास टॉपर वगैरह तो नहीं था। जब मैथ्स की कुछ क्लासेज अटेंड की तो पता चला यार ये मैथ्स तो काफ़ी अलग है। मतलब 10th तक जो मेरा मैथ्स के लिए परसेप्शन था वो बिल्कुल रेडियंस में आके बदल गया। खासकर मिश्रा सर की जो कुछ शुरुआत की क्लासेस रहती हैं, जैसे बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक, इनके बाद तो यार मतलब मज़ा आने लगा था, बिल्कुल लगा था अब तो मैथ्स ही लेना है। फिर धीरे धीरे मतलब इन दोनों सालों में मैंने अपने तीनों सर को ही रोल मॉडल बना लिया था। ऑल द बेस्ट टू ऑल JEE एस्पिरेंट। सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पे 10th से 11th में आया था तो सच में काफ़ी प्रेशर फील किया था। बट गलती क्या कर जाते हैं बच्चे कि 11th से प्रिपरेशन शुरू नहीं करते हैं, बाद में आंखें खुलती हैं, पर वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एक बार अगर 11th में पढ़ने की आदत लग गई तो फिर वो 12th में भी नहीं छूटती, और 11th और 12th मजाक में निकाल लेते हैं बच्चे। तो रेडियंस में सर लोग इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं कि सब बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं। हर दिन अगर सर का भाषण सुन लें तो फिर मतलब पढ़ाई तो बनी जाती है। सर लोग का एक्सपीरियंस 10 साल, 15 साल, 20 साल का है और उसको मैच करना तो नामुमकिन है। तो जो सर लोग बोले, त्यागी सर फिजिक्स में जो बोले, मिश्रा सर मैथ्स में जो बोले, कुशवाहा सर केमिस्ट्री में जो बोले, वही पढ़ना होता है। और जैसा सर ने भी कहा कि फ़ोन और सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके रहना चाहिए। हैव फन लर्निंग एट रेडियंस एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड जेई। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम यश सुनी। सबसे पहले तो मैं अपने सक्सेस के लिए अपने पेरेंट्स एंड अपने टीचर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। जब मैं स्कूल में था 10th के पहले तो कभी भी स्कूल में फर्स्ट नहीं आया और कभी थर्ड भी नहीं आया कभी स्कूल में। 10th में भी 9 CGPA आए थे और उस साल 1.5 लाख लोगों के 10 CGPA आए थे। तो एटमॉस्फेयर जो है कोचिंग का वो बहुत ही शानदार है। मतलब 12th में तो ऐसा होता था कि मुझे कोचिंग आना एक कोई मजबूरी नहीं होती थी, जबकि मुझे लगता था कि भाई आज कुछ नया पता चलेगा, आज बहुत मज़ा आएगा और आज फुल्की खाएंगे। मोटिवेशन की बात आई है तो फिर मिश्रा सर तो हैं ही, मतलब उनकी डांट भी मोटिवेशन होती थी। 11th में जब कोई आता तो उसको काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि यार बहुत टफ होता होगा, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो यार ऐसा नहीं है यार, हम लोग भी वहीं पे ही बैठे थे
और हम लोगों को भी ऐसे ही लगता था, लेकिन अभी जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो सही बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा वैसा IQ वाला मामला होता है, वैसा कुछ भी नहीं होता। और मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगा, वैसे मैं छोटा हूँ बोलने के लिए, लेकिन आप अपने बच्चे पे बिलीव करिए, मतलब उसके साथ रहिए हमेशा, और बस उसको ये बोलिए बेटा मतलब जो कुछ भी होगा वो देख लेंगे अपन लोग और अच्छा ही करोगे तुम। कुशवाहा सर तो यार पता ही है कैसे, मतलब क्या बढ़िया स्वैग से पढ़ाते हैं और मतलब बहुत ही मज़ा आती है। मतलब केमिस्ट्री टाइप का सब्जेक्ट सही बताऊँ तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। त्यागी सर की सिंप्लिसिटी, बहुत धीरे पढ़ाते हैं लेकिन कभी भी बोर नहीं होते इन क्लास में, कभी भी बोर नहीं होते। और फिर मिश्रा सर का वही 1 घंटा मोटिवेशन, 1 घंटा पढ़ाई, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब उससे आप बिल्कुल एकदम पम्प्ड अप होके घर जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। रेडियंस को लेके मतलब उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है पढ़ने के लिए, और वो मिश्रा सर तो बहुत ज़्यादा देते ही हैं। तो बाकी सर लोग को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, उन्हें पता ही क्या सही है क्या गलत है। First of all, I would like to thank my teachers and staff of Radiance for their support. And I joined Radiance in 2018. First thing that you have to do is maintain discipline. घर वाले बोलेंगे कि चलो बेटा पार्टी है, शादी है, तो इन सब को अवॉइड करना है। You should make your timetable, but never think of long, like अगले हफ्ते का टाइम टेबल नहीं बनाना है। What I used to do was रात को सोने से पहले मैं कल का टाइम टेबल बना लेता था। यू हैव टू फोकस ऑन रिलेवेंट थिंग्स ओनली, डोंट डू एनीथिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ हर्षित जैन और मेरी जेईई एडवांस में रैंक है 1743। सो फर्स्टली मैं अपनी जर्नी के बारे में शुरू करता हूँ। तो मैं 11th में रेडियंस में आया था जब, तो मैं 9th-10th में मैंने कोचिंग नहीं की थी। तो जब यहाँ आया तो ऐसा लगा सब लोग बहुत ज़्यादा पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती है कि यार अपन उतने प्रिपेयर्ड नहीं है और अपन कोचिंग भी नहीं गए थे। तो उससे बचना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग सब 2 साल के बाद सेम लेवल पे होते हैं। अगर आपने आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की होती, अपनी 9-10 से शुरू नहीं किया होता है, 11th-12th पर बिल्कुल बहुत फोकस्ड रह के पढ़ना होता है। Good afternoon everyone. First of all, I would like to thank the faculty of Radiance, my parents, my sister and the non-teaching staff of Radiance for their constant support during my preparation. 2018 में जब मैं Radiance आया था, यहाँ का फेलिसिटेशन फंक्शन अटेंड किया था, उसमें सीनियर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ था और फिर आज यहाँ बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एस्पिरेंट्स का सबसे पहला डाउट ये होता है कि भैया कितने घंटे पढ़ने से अपन जेईई निकाल सकते हैं। मेरा जवाब इसके लिए बहुत सिंपल है कि अपने दिन के टास्क निकाल लो, उसको लिख लो और फिर आपको उसको पूरा करने में जितना टाइम लगे, 7 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, वो कर लो अपने। अब जैसे मैंने अभी ज्वाइन किया, IIIT हैदराबाद ज्वाइन किया है। काफ़ी लोग को इसके बारे में अवेयरनेस कम है, इस कॉलेज के बारे में। हमें तो मिश्रा सर ने बहुत अच्छे से इस बारे में बताया था। कई लोग को इसका पता नहीं होता कि इसके जेईई के अलावा भी यूजी मोड से 5 ईयर वाले प्रोग्राम में एडमिशन्स मिलते हैं। तो ये सब अवेयरनेस की कमी है थोड़ी, लेकिन यहाँ पे सर लोगों ने हमें 2 साल से ही पहले से ही बता रखा था, तो ये सारे मोड्स वगैरह का भी हमें अच्छे से पता रहता है। Hello everyone and a very good afternoon. I would like to thank my parents, my brother and the teachers and the staff at Radiance. So जब 11th में मैंने PCM लिया था तो I was like कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं अच्छे से, बट सर लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ाया कि मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा सब्जेक्ट में एंड मज़ा भी आने लग गई करने में। सो इट वॉज़ वेरी नाइस। देन मैं कुछ लोगों को जानती हूँ कि जो अलग अलग कोचिंग क्लासेस जाते थे कि मैथ्स के लिए रेडियंस भी जा रहे हैं, इधर पे भी जा रहे हैं। सो आई विल से कि स्टिक टू रेडियंस, सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड लकीली इस साल से मेडिकल और नीट वाले स्टूडेंट्स भी पूरा रेडियंस में पढ़ पाएंगे। दैट्स सच अ नाइस थिंग। Hello everyone, my name is Akshat Tiwari and I have got All India rank 776 in JEE Mains 2021 and 1016 in JEE Advanced 2021. For this, I want to thank the team of Radiance for my success. और यहाँ पे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली टीचर से और टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने बताया कब करना है, कैसे करना है, टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छे थे, जिससे कि मेरी प्रिपरेशन बहुत सही तरह से हो पाई। लेकिन मैंने सच बहुत सीरियस प्रिपरेशन 9th-10th में नहीं की थी, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि रेडियंस में करूँगा। यहाँ मैं मिश्रा सर से मिलने आया था अपने पापा के साथ,
तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से बताया कि आप यहीं प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो फिर मेरे को उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला और फिर मैंने डिसाइड किया था, मेरे और मेरे पेरेंट्स ने मिलके, कि नहीं मैं जबलपुर में ही अपनी कोचिंग कंटिन्यू करूँगा। फिर भी मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आ गई और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी 9th-10th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी और वो बाहर भी चले गए थे, उनसे भी कुछ हद तक बेटर आ गई रैंक। तो बस आपको हार्डवर्क करते रहना पड़ता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहीं बाहर जाके पढ़ रहे हो या जबलपुर में पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो। मैंने 11th में रेडियंस ज्वाइन किया था। जैसा मिश्रा सर बोलते हैं, कम्प्लीटली पैकेज पे फोकस करना रहता है, तो वही उसी प्लान पे स्टिक करता था। एंड बाकी सर लोगों ने एडवांस के लिए अलग से पैकेजेस दिए थे, तो वो किए थे। सर लोगों से टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सर से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो और वीकनेस डिस्कस करो। मैं फ्रीक्वेंटली आपके टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता था, इवन मॉक्स में, कि मुझे 3 आवर्स बैठते नहीं बनता है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कीजिए। सर लोग को ही सबसे ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख चुके हैं आपके जैसे। एक सिर्फ हम ही मैं को आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में मैखाने हज़ारों हैं। Basically, what is engineering in our country? Engineering is a parking arrangement जहाँ पे बच्चा 4 साल के लिए अपने को पार्क कर देता है, फिर सोचता है अब क्या करूँ, मतलब अब मैं गेट दूँ, मास्टर्स के लिए जाऊँ, MSc करूँ, MTech करूँ, या मैं कोई स्टार्टअप में जाऊँ, फंडिंग के लिए सोचूँ, या मैं IAS की तैयारी करके सिविल सर्विसेज के बारे में सोचूँ, या मैं CAT की तैयारी करूँ, IIMs के बारे में सोचूँ। मीन्स मैथ्स प्रोवाइड्स सच अ जंक्शन आफ्टर 4 years वेर यू कैन डिसाइड कि ओके अब मैं किधर जाऊँ। बड़ा छोटा सा एग्जांपल एक लेना चाहूँगा। एक काफ़ी फेमस मूवी थी पिछले कुछ सालों में, जो कि चेतन भगत के द्वारा बुक जो लिखी गई उस पे बेस्ड थी, 3 Idiots। सबने देखा होगा 3 Idiots, तो आई थिंक उसकी स्टोरी भी याद होगी। रैंचो, आमिर खान जो कैरेक्टर था रैंचो प्ले किया। अब आप सोचेंगे कि उसके जो 2 फ्रेंड्स थे, आई होप मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ कि मूवी शायद 3 Idiots सबने देखी होगी। तो रैंचो का एक फ्रेंड था जो कि इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट नहीं था, फोटोग्राफर बनना चाहता था। अंत में फोटोग्राफर ही बन जाता है, सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनता है। मूवी में हमने देखा, तो आपको लगता होगा अरे फालतू IIT गया, फालतू इंजीनियरिंग किया, फोटोग्राफर तो अच्छा बन गया वो। तो अगर मूवी के अंत में इवन उस रियल स्टोरी को भी आप सोचे, तो आप ये पाएंगे कि क्या वो बिना IIT के फोटोग्राफर बन जाता। हु ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ? रैंचो जैसे लोग कहाँ मिलेंगे? इन IIT। अपन को स्टडीज़ के दौरान छोटे छोटे प्लान्स बनाना चाहिए एंड उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, बट स्मार्टली वर्क हार्ड, मैं ये बोलूँगा। सर हैव अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ऑफ 15 to 20 years और मोर, और अपने पास सिर्फ 1 या 2 साल का ही होता है, तो जस्ट फॉलो दैट। हम कभी नहीं कहते बच्चों की कोटा मत जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ाई वहाँ भी अच्छी होती है, बट क्या 2.5 लाख लोगों में आपको वहाँ लोग देख पा रहे हैं? परसेंटेज उनका सक्सेस परसेंट देखिए आपकी, 2.5 लाख में से कितने सिलेक्शन होते वहाँ? 4,000 परसेंट निकालिए आप। तो आपको अगर इस लेवल पे जबलपुर में अगर रेडियंस टीम उस लेवल पे सपोर्ट कर रही है, तो आपको रेडियंस विजिट करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा, इस टीम के लिए और इन बच्चों के लिए खड़े होकर अपने को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए इस रिजल्ट के लिए। तो अगर आप लोग स्टैंडिंग ओवेशन दें तो मेरे को अच्छा लगेगा। Thank you.